دیکھو نا، یہ دو گارڈ باہر کھڑے ہیں، تو اگر یہ نہ چاہیں تو ہم آ سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آؤ تو یہ تصور، یہ خیال لے کے آؤ کہ اس نے پھر مجھے بلا لیا ہے ادھر، اور پھر جیسے ہی مسجد میں قدم رکھو تو پھر ساتھ یہ بھی خیال کہ اتنے گناہوں کے باوجود پھر بلا لیا۔ دیکھو نا، کوئی بندہ ہماری بات نہ مانے تو بندہ رہ گیا۔ ہم تو سگی بہن کو گھر نہیں آنے دیتے، بندہ تو بندہ رہ گیا۔ اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے، ہم تو سگے بھائی کو نہیں آنے دیتے۔ تو شاید میرا بھائی، میری بہن کئی ہزار بار دوبارہ بھی پیدا ہو کے آئے نا، تو انہوں نے وہ میرے لیے برا نہیں کیا حضرت جو میں نے برا کیا ہے حضرت۔ تو یہ اس کا فضل ہے بھائی، میری اتنی زیادہ کوتاہیوں کے باوجود اس نے پھر مجھے آنے کی توفیق عطا کر دی۔ اور میاں صاحب نے شاید اس لیے لکھا تھا، ایک گناہ جب میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا۔ میں کل بھی ایک پروگرام پہ تھا، وہ والدہ صاحبہ انتقال کر گئیں، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی ان موقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگلے بندے کو اور ایموشنل کرتے ہیں۔ وہ ماں کے لیے دھڑا دھڑ کلام پڑے جا رہے تھے، تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھو، ماں یاد ہے، ماں کے لیے رو رہا ہے، لیکن جس رب نے ماں کے دل میں اس کا اتنا پیار ڈالا تھا، وہ رب کیوں نہیں یاد ہے؟ وہ بھولے بیٹھے ہیں سارے، یاد ہے وہ رب کسی؟ بھائی ماں بے ذاتی ہی تو نرم نہیں ہے، رب نے نرم کیا اس کو۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے امی کا دل اتنا نرم کر دیا، اگر نہ نرم کرتا تو کبھی پرورش نہ ہوتی ہے۔ آپ اپنا مزاج دیکھیں، میں اپنا دیکھوں، اگر مجھے کبھی رات کو 1-2 بجے بچوں کے لیے اٹھنا پڑ جائے تو تھوڑا بہت غصہ ہوتا ہے، لیکن اس کو 10 بار بھی اٹھنا پڑے تو اس کے مزاج میں کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ ماں ہے نا، لیکن وہ خود نرم نہیں ہے۔ میرے بچے، اس بات کو یاد رکھ، تیرے رب نے تیرے لیے تیری ماں کا اتنا دل نرم کر دیا۔ میں نہیں تجھے کہہ رہا کہ تو اپنی ماں کو سمجھ ہی کچھ نہ، یا اس کی قدر نہیں، اس نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تو نے اس کی قدر کرنی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ یاد ہے، جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر اس کی محبتیں، اس کا پالنا یاد کر کے بڑا روتے ہو۔ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار ماں یاد ہے، وہ کیوں نہیں یاد ہے؟ اس نے بیٹا دل نرم کیا ہے، اس نے ماں کے دل میں تیرے لیے اتنی محبت ڈالی ہے، تو وہ نہیں حضرت جی، وہ توجہ ہی نہیں اس جانب کوئی بھی۔ تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، وہ ماں تو جس کو سمجھتا ہے کہ جی اس سے زیادہ تو مجھ سے محبت کار ہی کوئی نہیں سکتا۔ میں نے بے تحاشا بار دیکھا ہے، ویسے موقع آئے ہیں کہ ماں نے بھی چھٹی کروا دی ہے، لیکن قربان جاؤں، کیا کہتے ہیں، ایک گناہ جو میرا ماں پیو ایکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا حضرت ہے۔ اور میں بالکل حضرت، میں جب مسجد میں داخل ہوا ہوں تو یہی میرا بھی حال تھا کہ 100 واری میں توبہ بنی تے میں ہم بے اعتبارا۔ پچھلے جو میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ یا اللہ اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر توڑ دیا وعدہ حضرت، پھر نہیں باز آیا حضرت، پھر نفس اور شیطان کا کہا مانا حضرت، رب اور رب کے رسول پاک کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا، بلکہ کیا کہا، لعنت اللہ علی الکاذب، لعنت ہے جھوٹوں پہ اللہ کی، نہیں باز آیا۔ غیبت کے لیے کہا تھا زنا سے بدتر ہے، سارا دن کی غیبت ہے۔ میں تو کہتا ہوں حضرت، جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری زبان بھی شکر ادا کرتی ہوگی، شکر ہے سو گیا کتے، جان چھوٹی، جب سے اٹھا ہے ایک کرنے والا کام اس نے مجھ سے نہیں کیا ہے۔ جب میں سو جاتا، میری زبان بھی کہتی شکر ہے کہیں سو گیا، جان چھوٹی بھائی، تانگ آ گئی میں اس کی بے حیائیوں سے، جب سے اٹھا ہے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے ہی بیدار ہوتے کلی کرتے، اور پہلی جو جملے میری زبان سے نکلتے وہ یہ تھے، الحمدللہ الذی احیانا، شکر اس مالک دا جن نے مینوں پھر زندہ کر چھڑیا۔ بھائی نہ تجھ بڑے سوتے نہیں اٹھے، بھائی بے تحاشا ہم نے دیکھے، سوئے نہیں اٹھے حضرت، نہیں اٹھایا اس نے،
पहली बात तो कुल्ली करने के बाद मेरी जुबान से निकलनी ये चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। और फिर आखिर पे क्या है, जाना मैंने उसी के पास, उठने से लेकर सोने तक मैं जुबान शुक्र करती हूँ, सो गया जान छूटी। झूठ छोड़ा तो गीबत शुरू कर दी, गीबत छोड़ी तो चुगली पे आ पड़ा, चुगली छोड़ी तो फजूल बकवास शुरू कर दी, फजूल बकवास छोड़ी तो किसी और काम पे लग गया। मैं तो जिक्र के लिए थी, मेरा तो मकसद जिक्र, मेरा तो मकसद कुरान की तिलावत, मेरा तो मकसद दुरूद पाक, मेरा तो मकसद अच्छा अच्छा बोलना था। क्या नहीं है जी, जो पिछले जुमे वादा करके गए, लेकिन कुर्बान जाऊं जी, फिर बुला लिया, फिर कर्म कर दिया। ना बुलाता तो भाई कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है जी, कोई उसका नहीं बिगाड़ सकता कुछ। सहवारी मैं तौबा बन्नी ते मैं हाँ बेतबारा, वाह भाई वाह। ये तो पुत्र कितने ऐसे थे जिन्होंने वो इंतज़ार करना था, यार रात आए तो चलो सोइए, और वो मेरे वर्गा भी जिन्हें इंतज़ार करना ही, चल रात आए तो गुनाह करिए। लेकिन मैं कहता हूँ यार कोई तो लाहौर में चाहिए होएगा ही ना, तो इसलिए भी रात का इंतज़ार कर रहा होगा, रात आए सारे सो जनते मैं मुसल्ले ते खलो के अपने अल्लाह नाल गल्लां करा। उधर हम उधर के उधर खड़े 25 साल बाद भी नमाज बोझ समझ के पढ़ रही हैं, और दुख ये है किसी खलाए भी नहीं, मुंह का जायका खराब, फट डॉक्टर कर, भुख नहीं लग रही, फट डॉक्टर कर, हजम नहीं हो रहा, फट डॉक्टर कर, पेशाब बोता आ रहा, फट डॉक्टर कर, पेशाब थोड़ा आ रहा, फट डॉक्टर कर। 25 साल हो गए, आज भी नमाज बहुत समझ के पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी किसी रूहानी डॉक्टर कल गए, कभी किसी अगे जाके दुखड़ा नहीं रोया। हुजूर 25 साल बाद भी है उठे उठे। मेरे इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमा रहे, फरमाया जे तेरा कभी दिल करे कि मैं अल्लाह नाल गल्लां करा, नमाज पढ़ी, जे कभी तेरा दिल करे तेरा रब तेरे नाल गल्लां करे तो कुरान पढ़ी। उठे दे मैं ये सुबह से निकला हूँ, मैं सुबह से घर से निकला हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर का ले जाए। सुबह से ले तक सैकड़ों लोगों से मिला हूँ, दो ही कमाली लोगों ने रोकिया, यहाँ तस्वीर ली तो यहाँ कहते जाते जाते ना कोई मीर होने वाला वजीफा दे दो। मैं इनको कह थकाऊँ, ओए अल्लाह दे बंदियों को होश करो, और जे कोई मीर होने वाला वजीफा है वे या होए, और तानू कानू दसा पहले मैं आपे ना पढ़ लवा। मैं इन्हों को मंगन डिया था, मैं एने दवोगे तो तकरीर करना आवागा तो कहते सानू मीर होने वाला वजीफा दे, मैं तो आपे गरीब हाँ। ये कैसी कौन, मीर भी क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मैं आपे कहने एने दे आना, कहते सानू मीर होने वाला वजीफा दे। मैं हजूर मीर होने वाले वजीफे का इनकारी नहीं, लेकिन भाई जो जानते हैं या कबर या मज़ारा बेचने तो या किताबा बेचने, जे उन्होंने है भी सी तो कभी अपने लिए पढ़िया। ये इससे आगे जाने को कौन तैयार। मेरे हजरत एक शाह साहब है, बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है, लेकिन छुपाते हैं खुद को ना बहुत ज्यादा। और जे किसी लै भी जावा तो तबीयत में मलामत ही इतनी है कि आइंदा काम करेंगे कि बंदा दोबारा आए ही ना दोबारा। मैंने कई बार हजरत से, भाई दिल दुखिया ना उन्होंने, मैंने कई बार हजरत से अर्ज किया, मैं हुजूर अपना बुआ खोलो लोगों लिए। फरमाते क्या होगा बुआ खोलने से? मैं हजरत फैज़ होएगा। फरमाते फैज़ लैन वाला है ही कोई नहीं, ऐ तो उन्हें मझ सूण वाली होए तो आटा लैन देने शाह जी दम करो कट्टी हो पे, तो बीबी वारी पानी की बोतल लैन देने शाह जी दम कर दे मुंडा हो पे। कहते कट्टियां ते कट्टियां ते कुड़ियां ते मुंडियां तो अगे। अल्लाह पुत्र ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, अल्लाह का कलाम, आयत पढ़ने लगा जी। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। मफ़हूम है ईमान वाले हो, माल भी देंगा औलाद भी देंगा, ध्यान करियो ए माल ते औलाद ताड़े ते साडे विच ना आ जाण किते। और वही हुआ है। असद साहब एक सर्कल च घूमन डे दे, सर्कल चो निकल सके, छोटे थे कुछ बड़े हुए, घर वालों ने स्कूल भेज दिया। तीसरी क्लास में कहता रहा कि पायलट बनना है,
चौथी जगह नहीं डॉक्टर बनना है, पंजी जगह नहीं इंजीनियर बनना है, छेवीं जगह नहीं आर्मी च जाना है, सतवीं च घर देने क्या वो बाद च वेखांगे, पहले कम से कम मैट्रिक करना है। मैट्रिक ठीक नंबर ना कर लिया, घरदे ने कॉलेज भेज छड़िया, कॉलेज ठीक रहा, यूनिवर्सिटी टोर छड़िया, डिग्री लैके मैं घर आ गया, घरदे ने कहा बई तू नौकरी लभ, तो असीं कोई कुड़ी लभ लैने। मैं नौकरी लभ लई, उन्होंने कुड़ी लभ लई, विआह हो गया, 2 साल लंघे तो किबला मुफ्ती साहब कल, किबला शाह साहब कल, किबला पीर साहब दे कोल, पीर साहब 2 साल हो गए ने विआह होया, को दुआ करो अल्लाह कुड़ी मुंडा देवे। लो जी मुंडा हो गया, 2 साल कटे फिर आ गए, पीर साहब हुण दुआ करो अल्लाह को कुड़ी दे देवे। लो जी कुड़ी हो गई, 2 साल कटे फिर आ गए, पीर साहब कल्ला मुंडा है दुआ करो 2 भरा जरा सोहने लगणगे, 2 भरा हो गए, फिर 2 साल कटे फिर आ गए। वो शाह जी कल्ली भैन की करेगी, दुआ करो 2 हो जान, दुख सुख कर लेने। लो जी 2 हो गई, फिर उनका मैट्रिक, फिर उनका कॉलेज, फिर उनकी यूनिवर्सिटी, फिर उनकी नौकरी, फिर उनका दूल्हा, फिर उनका लाड़ा, 2 साल लंघे तो फिर आ गए। शाह जी दुआ करो 2 साल हो गए ने, मुंडा व्याया को अल्लाह पोतरा पोतरी दे दे। उसी सर्कल में कुड़ी भी है, मुंडा भी है, मैट्रिक भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, नौकरी भी है, लड़की भी है, शादी भी है, पोतरा भी है, पोतरी भी है, दोतरा भी है, दोतरी भी है। मैं उम्मत से यह सवाल कर रहा हूं, और सारा कुछ है, अल्लाह किधर है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अच्छा लो जी बड़े पाक इकट्ठे हुए ने, सज्जे खब्बे सोहना गुलदस्ता, मैं तो फायदा चुकांगा ना को। लो जी मैं इन्हां दे पैरां ते हत्थ रख के ना ते तुहानूं ते अपने आप नूं एक सवाल करन लगा जी। पहला दिन ने और मैं तो ऐ तालबे इल्म रोला शोला पाप उठना वा, बयान आप आगे सुनेंगे इंशाल्लाह, बड़े सोहने सोहने बयान होंगे। वो सच बताइएगा एक बात, बड़े बुजुर्ग बैठे ने, हो सकता है कर्म हो जाए, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु दिन मुबारक है आज। वैसे तो हज़रत आजकल दुआ का रिवाज ही नहीं है, हमारे नमाजी नहीं दुआ करते, कोई सलाम फेर देन हो गई। अल्लाह मेरा बड़ा दिल दुखता है इनको देख के, मैं कहता हूँ बद नसीबा, वो अल्लाह कार आके भी बगैर मंगे टुर चले हैं, अल्लाह कार आके भी बगैर। सैयदुना ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बंदे को देखा दुआ के बगैर ही जाने लगा, आपने हाथ पकड़ लिया, फरमाया बेलिया मंगिया बगैर ही टुर चले हैं, कुछ भी नहीं था जो तू अपने अल्लाह से मांग लेता। फिर रो के फरमाने लगा मेरा तो लून भी मुक जे तो मैं अल्लाह को मांग लेना वा। बस उतर एक काम करो जड़ा तुसी कोई नहीं करते है, किसी कल बह के मंगना सीखो, फिर जो लैके जाना जिस करूँ लै जाओ। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते मेरे बचपन में बगदाद शरीफ में कत्ल हो गया, कैमरा शैमरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, तकरीबन सारे एक जैसे लगते थे। कहते वो बंदा जिसने चोर को चोरी करके भागते हुए देखा, जब पुलिस वाले उसको शनाख्त के लिए लेके निकले ना, उसने 20 बंदे पकड़वा दिए। कहते एक बंदा उसमें वो भी पकड़ा गया जो बगदाद शरीफ का रहने वाला नहीं था, बाजार से गुजर रहा था, लगता ही मैं बाहरों, उन्हें कहा भी ए भी ऊंजदा ही लगता है, उन्होंने भी तर लिया। आप फरमाते हैं मुख्तसर रात तक 19 अहबाब को शख्सी जमानत पे छोड़ दिया गया, भाई फड़िया गया असी इसी का हिमायती सिफारशी जानने वाला जामिन आया ले गया, वो कला रह गया। लेकिन है किसी कल बहन वाला सी, है किसी कल बहन वाला, उन्होंने पता ही रंग की, उन्हें सिर रखा सजदे चर्ज करता है रब्बे करीम तेरी शान है आलिमुल गैबी व शहादा, तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया, वो जो 19 चले गए हो सकता है उनमें से को कातिल हो, लेकिन किसी का हिमायती सिफारशी जानने वाला जामिन आया ले गया। रब्बे करीम शहर बगदाद है, मेरा इधर जानने वाला कोई नहीं, इसलिए मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जानने वाला भी तू, मेरा जामिन भी तू। कैसे हो सकता है हजरत साहब कोई इस लेवल पे आके अपने अल्लाह को पुकारे और मेरा अल्लाह उसकी पुकार ना सुने? सिर्फ किसी का सीखो, मियां साहब ने अपने मुर्शिद को सिर्फ कट्टे कटियां नहीं सन मंगे है, ढंग सीखिया सी हजरत साहब, ते सीख के फिर की कहंदे ने, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा ते जिवें बाल हरियाणा, एक निकी जई जिद कर बैठी मैं खाली नहीं जाना। कैसे हो सकता है बंदा इस लेवल पे आए और कर्म ना आए? बार बार लगा था, बार बार कर्म हुआ। हारून सोया पड़ा, कानों में आवाज पड़ती, ओए हारून, वो तू मिठी नींदर के मजे ले रहा है, वहां अल्लाह का बंदा रो रो के अल्लाह को पुकार रहा है, जा जा के रिहा करवा। शेख जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं हमारे शौक के हारून ने ना सर पे पग बांधी ना पाँव में जूती पहनी, वो कौन है वो जिदे वास्ते हारून ही उठा दिता गया? मेरे वुज़रा मौजूद हैं, मेरे जज मौजूद है शहर में, काजी मौजूद है शहर में, गवर्नर शहर मौजूद है,
कितना वो अल्लाह रसूल का खास होगा। बात से उठा दिया गया, जाके क्या हुआ, चेक कराओ एक एक उसने कमरा चेक किया, लेकिन कोई बंदा इस तरह का नहीं मिला जिसको देख के लगे कि ये को अल्लाह का खास है। सारे शक्ल चोरू चक्के हजरत। दोबारा फिर कोई नहीं, तीसरी बार फिर कोई नहीं। बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा यार बंदा होना चाहिए, भेजा गया हूँ, बंदा किधर है। वो घूमता घूमता ना कहीं खुद ही चला गया उस तरह, वो नहीं लेके गए, उन्होंने समझा भी टुर गए। लेकिन वो उठे गया तो कन्ने आवाज पई, मेरा महती भी, मेरा सिफारशी भी, मेरा जानने वाला भी, मेरा जामिन भी। लिखा, दरवाज़ा खुलवाया, सीने से उठा, सजदे से उठा के सीने से लगाया। मैं पंजाबी में कह रहा हूँ ज़रा मज़ा लेने के लिए। पता क्या कहता है? कहता है वो बड़ा ही डाडा है, सुता बादशाह ही ठोवा ले। क्या कहने, क्या कहने। क्या बड़ा ही डाडा है, सुता बादशाह ही ठोवा ले। दर तेरे ते वहड़िया कर, बड़ा ही डाडा है, सुता बादशाह ठोवा ले। चल मेरे नाल। महल ले गया, क्या हूँ सो जा, फजर से मुलाकात होएगी। फजर कट्ठियां पड़ी, अपने वजीर ने बुलाया, क्या जाओ नवाओ तो आओ, सोने कपड़े पवाओ, मेरे दरबार लेके आओ। और दूसरा आज पूरे बगदाद में ऐलान कराओ, आओ आओ आकर अपनी आंखों से उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। सिखो सिखो हुजूर, सिखो 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 पुत्र, बस करो, बड़े कानों के चस्के लगा लिए। असी ओथे दे ओथे। एक तो कैटेगरी वो है ना जो मांगती नहीं, और जो मांगते हैं कभी उनकी भी दुआएं देख लें। कुड़ी मुंडा, सास सौरा, साला भनूजा, खोता कोड़ा, टांगा रेड़ा, गर्मी सर्दी, गर्मी बोती, गर्मी थोड़ी, बारिश हो गई, बारिश नहीं हुई, सर्दी आ गई, सर्दी नहीं आई, धुंध पै गई, धुंध नहीं पई। उनकी दुआएं भी कभी इससे आगे गई। यकम मुहर्रमुल हराम है, अल्लाह का घर है, इस कदर पकीज़ा लोग बैठे हैं। सच पुत्र दसना जी, सच भाजी, सच कहना जी, सच बताना पुत्र। कभी ज़िंदगी में ये मौका आया, हाथ खड़े किए हों और अल्लाह के हुज़ूर की, और रब्बे करीम अज ना खोता, न कोड़ा, न टांगा, न रेड़ा, न गर्मी, न सर्दी, न कुड़ी, न मुंडा, न सस, न सौरा, न साला, न भनूजा। अज कोई गल नहीं करनी, अज सिर्फ ऐसली तेरी बारगाह छात खलारे ने मैनू अपने और अपने महबूब की मुहब्बत अता फरमा दे। क्यों भाई? ओथे दे बस ये बड़े पाक दिन आए ने बच्चे, जाया न करो हजरत, वधो अगे। हम पीछे 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 पीछे, हम आगे नहीं। हम मैं हजरत साहब पीछे भी अर्ज करके पुत्र मेरे काके हो, कभी नबी करीम अलैहिस्सलातो सलाम हमसे इतने राजी थे, इतने राजी थे, इतने राजी थे कि ख्वाब में नहीं, हालते बेदारी में 92 बार हमें अपने जलवे से नवाजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। असद साहब कभी हम पे वो दिन भी रहे हैं, हम हिंद के किसी जंगल में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातो सलाम हालते बेदारी में हमारा कुरान सुनने के लिए तशरीफ लाया। कभी वो हम पे दिन रहे हैं, हदीस पे काम हो रहा है, रिवायत पे, दिरायत पे, अस्माउर रिजाल पे। जो रावी जिससे रिवायत कर रहा है वो 100 साल पहले इंतकाल कर चुके हैं, मुलाकात ही नहीं। परेशान है मुहद्दिस, क्या करें। हजरत शेख अबुल हसन खिरकानी की बारगाह में जाया जा रहा है, जरा रसूल करीम से अर्ज करके बताएं ये हदीस उनकी है कि कभी हम पे वो वक्त रहा है हमने जाके सलाम अर्ज करना, आपने इतनी ऊंची जवाब अता फरमाना, पूरी मस्जिद नबी ने उस जवाब को सुनना। कभी हमें वो दिन मुयस्सर रहे हैं, हमने मदीना तैयबा हाजिर होना, हमारे लिए मिदारे अक़दस से दस्ते करीम बाहर आया करता था। मैं ये मौजूद इधर छोड़ रहा हूँ। 50-60 साल पहले हजरत हमें ये रंग मुयस्सर थे, हमने मदीना पाक हाजिर होना, वापस आना, लाहौर वालों ने, सियालकोट वालों ने हमसे मिलने आना और आके पूछना भी मदीना पाक तू आया है तो कोई गल ही सुना। तो रही गल भी की सुनानी, मक्के की फिजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा
सरकार नजर हमने तो जिधर देखा सरकार नजर। सच बताइए भाई, 2026 में या 2025 में को वापस आने वाला कोई इस तरह की बात सुना सकता है आगे? हम आगे सिर्फ ये बता सकते हैं होटल दूर सी के नेड़े सी। चल बेटा आ गए सब की तरफ से, अब बात सुन लो। हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं होटल दूर सी के, हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं होटल चंगा सी के, हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं अलबेक किन्नी वारी खादा। हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं मैनू केड़ा मिलन आया तो मैं ना तू होटल आया सा, ना तू अलबेक खान आया सा, ना तू किसी नू मिलन आया। बाबा जिन्हां दी बारगाह च आया गल कोई उन्हां दी सुना। मक्के की फिजा तैबा की हवा में हमने तो जिधर दे नजर। क्या कहने, मैं अपने ढिड को कपड़ा चुक देना। चलो शायद किसी ने को गल समझ आए। ये शाह साहब मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, मैंने कई बार इनसे गुजारिश की, शाह जी किते आप दे नाल मदीना पाक जाना है। वो फरमान लगे नहीं अल्लाह का बड़ा करम है, आप जाया करें, आपको पता है। मैं कह नहीं हुजूर जिन्ना मर्जी पता हो तो नहीं है ना, आप न जाना है किते। अच्छा चलो देखेंगे। मुझे शाह साहब की कॉल आ गई, अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम, किधर हैं आप? मैं शाह जी मैं तो इस वक्त इंग्लैंड हूँ, तो मैं मदीना पाक आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं शाह साहब आज दी माफ़ी दे दो तो कल मैं हाज़िर आए, मैंने आपके लिए जगह भी कमरे में रखी है। मैं चलो मैं आ गया, अगले दिन मैं पहुंच गया। ज़ाहिर है मुस्तहब है, गुसल करो, सोने कपड़े पाओ, तो खुशबू लाओ, मिसवाक करो, दुगाना पढ़ो, सारा कुछ ही कर लिया मैंने। हम चल निकले। आशिकां दी गल्लां पुत्र को थोड़ियां वक्रियां होंदियां। होटल ज़रा दूर लेते हैं, कहते ने मज़ा आंदा है नबी अलैहिस्सलाम दे शहरे पाक दियां गलियां च फिरन दा। जाते हैं तो गोश्त नहीं खाते, कहते हैं मेरे लिए सब्जियां पकाओ मदीना पाक दी। फिर कहते छिलका भी ना लाओ, सने छिलके ही पकाओ। वैसे बड़ा पाकिस्तान में बड़ा कम खाते हैं, लेकिन उथे मदीना पाक है। हम जा रहे हैं क्योंकि पुत्र उधर आंखों की बड़ी आजमाइश है। आंखों की वो मुझसे कहीं कोताही हो गई और हुई भी जरा वाल करके। उन पता सी कि अखां गंदियां ने, तो की कीता फिर अंदर वो जो गुंबद शरीफ के बिल्कुल सामने वुजू खाना ना, वहाँ चले गए और एक टूटी के सामने बैठ के मुझे कहते हैं मिसबाई साहब 2 गिलास आबे ज़मज़म लेके आए। मैं ठीक है जी। बाहर निकला, इस साइड पे भी कूलर पड़े हैं, इस साइड पे भी कूलर पड़े हैं। मैं इस साइड पे गया, 2 गिलास आबे ज़मज़म एक ला के शाह साहब को पेश कर दिया, तो आंखें धोना शुरू कर दी। मैं हैरान खड़ा देख रहा हूँ कि यार होटल से वुजू तो कर बना के आए थे। ओए ओए बच्चे, ओए पागल, ओए अल्लाह के बंदे, तू कैसा आदमी है? ओए फिर वही काम। चलो जो भी है पुत्रा, अल्लाह खैर करे, प्यार के साथ बच्चा है। चलो खैर अल्लाह ने आगे 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 आ जा, इधर आ जा। पुत्रा इस तरह तेरी ना कर दे, सो है कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। इसको प्यार से रोको जरा यार। जाओ जाओ रोको, प्यार से को जाओ जाओ लेके आओ वापस। अल्लाह रहम फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह। वो ना शाह साहब ने वो आंखें, अब मैं हैरान परेशान देख रहा हूँ कि यार को रास्ते में को नेरी शेरी भी नहीं आई, वो अखां च कोई मिट्टी पई होए, तो साड़ियां अखां दा कित्थे एडा नसीब के को साड़ियां अखां च मदीना पाक दी मिट्टी पै जाए, तो जे पै जाए तो असीं धोइए ना। वो एक कैफियत थी ना, तो मुझे कहते हैं कि आप भी धोएं। वो मैंने भी हजरत वो धोना शुरू कर दिया। बाकी जो बचा फरमान लगे पी जाएं, उन्होंने अपना पी लिया, मैं अपना पी लिया, चल निकले। अब आपको पता सीधे नहीं जाएंगे, जिग जैग है, सीधा चलेंगे, गुंबद शरीफ के सामने आएंगे, ऐसे मोड़ काट के फिर बैक आएंगे। हम चल रहे हैं, मेरे अंदर ख्याल चल रहा है कि शाह साहब ने अखां क्यों, तो मुझसे नहीं रहा गया, मैंने पूछ लिया, मैं शाह साहब वुजू तो कमरे से बना के आए थे, तो आंखें क्यों धुलवाई? फरमान लगे फिर अंदर गंदियाँ लैके जानी है सर। फरमाया फिर अंदर
फरमा लगे इन आँखों को उन्होंने देखना था, इन आँखों को हजरत अबू बकर ने देखना था, इन आँखों को हजरत उमर ने देखना। हजरत से सही तुचियां अथरुआं दे नाल, लेकिन एक गल भी सीख ली कि जो इत्थे आना है तो अंदर कुछ गंदा लैके जाना, और असी हजरत पता नहीं की लै जाने। काश हम भी हजरत, तो फिर हमने भी वापस आके क्या कहना था, मक्के की फिजा तैबा की हवा में। माशाअल्लाह, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह कुछ नहीं होता, अल्लाह हक जाए यार। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ना ना पुत्र, बड़ा बड़ा है, मुश्किल है, लेकिन अल्लाह खैर करे पुत्र, अल्लाह तेरे ते बड़ा करम करेगा। अल्लाह ने ना समझा तेरे ते को करम होना, ता ही ये वाला काम होया है। अल्लाह 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 तुझ पे बड़ा करम करेगा पुत्र, अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं पुत्र, बड़ी ऐसे शय ने तो पुत्र दूर कर छड़े, ऐसे शय ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल तू सानू सानू दूर। मैं हजरत कोई अपने वालिद साहब की किबला तारीफ नहीं करने लगा। पहले पुत्र जिस तरह हूँ हाथ जुमरा, पहले इस तरह नहीं सी, कोई टावा टावा जाया करता था, लेकिन जाते कैसे थे। मेरे वालिद साहब बहुत सख्त तबीयत के मालिक हैं। मैं तो हजरत उनको 15% भी गुजर नहीं रहा है, अबू जी पूरा 100% गुजर है, पूरा 100 वाला गुजर। पहले कुट लेने के बाद पूछना होया की, जी मेरा कसूर निकला तो फिर कुटना है हजरत, लेकिन कुट बना गई मैनू। बहुत सख्त तबीयत अबू जी की है, लेकिन मैंने देखा 82 में अबू जी पहली बार हज पे गए हैं। 3 अगस्त 1984, 6 अदरू तो 2 अदरू, 8 साल का सन, लेकिन मुझे याद है। इसके बावजूद अबू जी नाल चाचा जी रहते सन, चाचा जी कल गए, मम्मा सैन ओ भाई मैं बड़ा गुस्से वाला बंदा वा, जे को कितने को गलती हो गई माफ़ कर दी। बोला तो लफज क्या थे अबू जी, मैं नबी पाक कल चला। पुत्र पहले लोग इंज जाते होंगे सन, ताया पुगल भी गए, मुझे याद है। पा अल्लाह रहम, तू वड्डा है, पा जे कितने गुस्से च कोई गल हो गई तो माफ़ कर नहीं, मैं नबी पाक कल चला सल्लल्लाहु अलैहि। मेरी एक ही फूफो है, छोटी हैं अबू जी से, ढेर छोटी हैं, उहदे कल भी गए। गुड्डी पुत्र मैं तबीयत का बड़ा कोड़ा वां, तो पुत्र जी कितने कुछ हो गया तो मैनू माफ़ करी, मैं नबी पाक कल चला सल। मेरी नानी अम्मी और अबू जी की सकी फूफो भी ना, उहदे कल भी गए। फूफो रिश्ता कुछ इंजदा है, फूफो जी कितने को वादा घाटा हो गया, माफ़ कर दी, मैं नबी पाक कल चला। फिर जाके फिर मौजा केड़ियां कर देंगे सन, मक्के की फिजाओं में। हूं तो पुत्र ओदा भी खा जा, ओदा भी खा जा, ओदा भी खा जा, टुर कितने जा, चल पुत्र फिर होटल तेल बेक ही खा के वापस आ जा। मैं क्या ना छुरी फेर छड़ दे, ना कुछ और था, साडा ना ही कोई ना लवे, जान के ना की रख लिया बाबा। सादात में सी हसनी सैयद है, साडा ना ही कोई ना लवे, जान के बाबा लोरी शाह बन गए। सारी उम्र ऐसे बैठे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जेड़े वेले जाओ बाबा हजरत के बाद ना मिलार है आगे, जो हजरत उनका नाम है साईं जलाल, इनका ताल्लुक सियालकोट के बिल्कुल एक करीब छोटा सा कस्बा है अगोकी, उधर से हजरत का ताल्लुक था। जवान आदमी थे हजरत, जवानी दीवानी होती है कहीं, बस कोई मामला बन गया इश्क का, वो जिधर मामला बना आगे घर हिंदुओं का था, मुसलमाना का होंदा, चलो को शाह साहब को किबला साहब ज़्यादा साहब मुफ्ती साहब भाई असद को मुफ्ती साहब का तरला तुरला कर दे, चलो यार निकाह करा छोड़ो दो का, लेकिन वो मुसलमान हिंदू कुछ हो ही नहीं सकता। वो किसी ने मशवरा दिया बाबा लोरी शाह टुर जाए, जे बाबे लोरी शाह की जुबान तेरे लिए हिल गई तो फिर वेख व्याह हो के रहेगा। वो चला गया, हजरत दुनिया बैठी थी वो भी बैठ गया। हजरत ने आंखें खोली, सारे जो उन्होंने इशारा किया, फरमाया नेड़े हो गया। आपने पूछा आने का मुद्दा, उन्हें दसिया वो जरूर तो
نکاح کرنا ہے وہ تو لیکن کار ہندوؤں دا ہے. اب اچھے خاصے خفا ہوئے. فرمایا تینوں شرم نہیں آتی؟ کوئی پاس نہیں تجھے نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا. انبیاء دعائیں کرتے رہے, اللہ نے تجھے بنا دیا اور تو کیسی باتیں کر, جا نکلا تو. آپ نے کہا کہ آنکھیں بند کر لیں, دلوں مجبور سی, کوئی نہیں گیا. حضرت نے پھر آنکھ کھولی, اینے پھر انہوں اشارہ کی تھا اور کول. حضرت کا وہی سوال, اس کا وہی جواب, حضرت کا بھی وہی جواب. پھر فرمایا ٹر جا, پھر نہیں گیا. تیجی باری پھر آنکھ کھولی, پھر وہ اسی کی تھا, وہ سامنے آ گیا. حضرت کا وہی سوال, اس کا وہی جواب. لیکن حضرت نے وہ جواب نہیں دیتا. ماری ایک کبے ہاتھی چنڈ اے سیدھا نہیں ہوا, سجے دی کڈ ماری ہے. وہ جی حضرت بیٹھے سن وہ بھی ہنجی بہ گیا. منڈا گھر نہیں آیا ساری رات, لب لب پھاویں ہوئے. صبح بیلی نے دسیا, کہندا سی بابا لاہوری شاہ جانا ہے, ویکھو کہ تو اتنے نہ ہوئے. وہ پیو پہنچیا تو جی حضرت بیٹھے نے وہ بھی وہیں بیٹھا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پتر کنڈو پچھانے جاندہ. پچھان لیا انہیں, جا کے کانڈ تے ہاتھ رکھ کے کیا انہیں کہا, پتر جلال ساری رات تو اتنے بہ رہے ہیں, اتنے تیری ماں رون ڈئی ہے, چل کر. انہیں پیچھے ویکھ کے آخیا, انہیں کہا کیڑا جلال؟ انہیں کہا توں جلال. انہیں کہا جدو بابے نے پہلی چنڈ ماری سی جلال کڑ, جدو پہلی چنڈ ماری کڑی کڑ چھڑی, دوجا ماری جلال بھی کڑ چھڑی. جدو پہلی چنڈ ماری کڑی کڑ چھڑی, دوجی چنڈ ماری جلال. نہ پری رہی نہ جنو رہا, نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا, جو رہی تو بے خبری رہی. حضرت صاحب کھڑانا لائے دے لیکن ہم ادھر کے بس کریے. حضرت صاحب ان بس کریے, بڑے مزے لے لیے کانوں کے, بڑے مزے لے لیے, بس کریے. ٹریے حضور اگے. حضور میرا سارا دن کا کام ہے حضرت پیچھے کیڑا کیڑا درد روئی ہے, جا کے پیچھے پیچھے پیچھے. یہاں تو صرف اتنا کہا نا, سورہ توبہ میں پورا مضمون ہی کھولا. میں اینڈ کرنے لگا ہوں, 1 گھنٹے ہو گیا پورا. کل ان کان آباؤکم, اجازت ہے کرو اپنے دادے دادی نانے نانی نال پیار. و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. سب کا نام لیا, جس سے انسان محبت کر سکتا ہے, اس کو ہو سکتی ہے, سب کا نام لیا. لیکن پھر اگے کی کیا, احب الیکم من اللہ و رسولہ. اجازت ہے ان سے پیار کرو, کرنا ہے, لیکن ایک بات کا خیال رہے, ان سارے پیاروں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیار غالب رہے. حضرت یہ بھی نہیں کہا چل جنہ ماں نہ لے انہاں اللہ نہ بھی کر لیں. یہ بھی نہیں کہا چل جنہ پتر نہ لے انہاں ساڑے محبوب نہ کر لی, جنہ بڑھی نہ لے انہاں ساڑے نہ کر لی, جنہ پیو نہ لے انہاں ساڑے نہ کر لی. فرمایا نہیں, ساڑے اور ساڑے رسول نال. لیکن حضرت صاحب ہو کیا رہا ہے, اٹھا ٹورے. لیکن ہو, میں اسپیشل نوجوانوں سے ہو کیا رہا ہے, میں حضرت خود گواہ ہوں. 2 ہی کرسیاں لگی ہیں جتے شاہ صاحب تشریف فرما نے نعت خاں پڑھن رہے ہیں, نال میں بیٹھا ہوں, وہ پڑھ رہا ہے, میں سن رہا ہوں. کلام بھی کوئی ایسا نہیں کہ بندہ کہ جی اردو بڑی ثقیل تھی, انہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کی کہن رہے ہیں. تاب مر رات سحر, مینوں نہیں پتہ لگا کی زہے عزت ہوئے تلائے محمد, پہ مینوں نہیں پتہ لگا کی اردو بڑی ثقیل ہے. نہیں, بڑا عام سا کلام پڑھ رہا ہے پڑھنے والا. ہیں جی وہ چمک تو کیا نام ہے, بڑا معروف کلام ہے حضرت. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. وہ پڑھتا پیا, میں نال بیٹھا تھا, میرے سامنے حضرت بندہ نیچے سے اوپر آیا. اچھا ایس کان چ کہہ ہٹدا تے چلو مینوں نہیں پتا کی کیا سو. انہیں کیا بھی اے والے کان چ, اور اے والے کان وال میرا اے والا کان. ناشی پڑھ رہا ہے, انہوں آ کے کہندا 2 شیر ماں دی شان. میں سوچ میں پڑ گیا, میں یار ذکر تے نبی پاک دا ہون ڈیا سی, انہوں ماں کتوں یاد آ گئی ہے. ذکر تے نبی پاک دا ہو رہی ہے, انہوں ماں کتوں یاد, اتنی محبت بس. اور پھر حضرت میں ان کی ہمت پہ حیران ہوں. کیا کہ نعت خان کو کیا کہتے ہیں, چل نبی علیہ السلام دا نام بس کر تے کی سنا سانوں. اللہ اکبر. یار اینی ہمت کتوں لین دے. لیکن ہو رہا ہے اگے جان دے بجائے. لیکن حضرت جن کی یاد میں بیٹھے ہیں قربان جائیں, فاروق اعظم رضی اللہ, زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں رات کا وقت ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا
गश फरमा। इस्लाम का मिजाज है जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, दिया जल रहा है, मिजाज के खिलाफ हो रहा है। देखने के लिए गए कि इतनी रात को दिया क्यों जल रहा है, लेकिन जब वहां पहुंचे तो जाके देखते क्या एक अम्मा चरखा चला रही है, लेकिन साथ नात सोने महबूब की पढ़ रही है। बस नात का सुनना था कि बेकरार हो गए, बेखुद हो गए, बेतहाशा मोहतात होने के बावजूद दरवाजे पे दस्तक। एक और भी रात को काम हुआ था, लेकिन तब दरवाजे पे दस्तक नहीं, तब भी रात ही थी। ज़ैद बिन असलम तब भी साथ थे। कहते गुजर रहे हैं, घरों आवाज आती है, कान च की आवाज पैंदी है, एक माई किसी को कहती है बकरियां सोन वालियां ने, दुध घट है, पानी पा दुध विच दुध उन्ना ही कर लै। दूसरी आवाज आई, वो भी लड़की है लेकिन है बच्ची है कोई, वो कह रही अम्मा मैं दूध च पानी नहीं पाना। अम्मा कहती है क्यों नहीं पाना, वो कहती हजरत उमर ने दूध में पानी डालने से मना किया है। हजरत उमर बाहर खड़े सुन रहे हैं, वो कहती तू दूध च पानी पा, हजरत उमर केड़ा पे सुन दे। कहा अम्मा कैसी बात कर रही है, हजरत उमर नहीं सुन रहे लेकिन तेरा मेरा तो रब तो देख रहा है ना। सुन रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक, घर याद रखिया, सवेरे पता कराया बच्ची ब्याही दी ते नहीं, बच्ची किते मंगी दी ते नहीं, बच्ची दी किते मंगनी होई दी ते नहीं, किते सगन ते नहीं होए दे। रिश्ता मांगा, बच्ची को अपनी बहू बना लिया, लेकिन दरवाजे पे दस्तक दी। लेकिन जब बारी आई नबी पाक की तो दस्तक, अब फिर अंदर से भी आवाज आती है कौन का उमर, फिर आवाज आती है इतनी रात को उमर का मेरे घर में क्या काम, कामा डरना, बुआ खोल अड़ी सोनी महफल में सानू भी शामिल कर। लेकिन उम्मत कितने पहुंची है, नात बंद करवा के। चल ठीक है यार, ये तेरा मां की शान सुनने दिल करता पे। असद भाई आए ने, आंदे कह दे भाई असद जी ते याद रहा ना तो कोई दो शेर मां की पढ़ दी, लेकिन नात बंद करवा के, नात बंद करवा के अम्मा ने दरवाजा खोलिया, दीवार के साथ टेक लगा के बह गए। फिर मैं अम्मा जी यही नात पढ़ो लेकिन जरा थोड़ा जा बदल के पढ़ो, पहले तुसी पढ़न रही हो काश कोई मुझे 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 इस बात का यकीन दिला दे कि बरोदे हशर भी मुझे 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 नबी पाक का साथ नसीब होगा। पहले कह रही हैं सो मुझे ऊँधर इन्हों इंज करके पढ़ो काश कोई हमें 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 इस बात का यकीन दिला दे कि बरोदे हशर भी नबी पाक का साथ। ज़ैद बिन असलम से मर गई, कहते हजरत उमर रोते रहे, अम्मा पढ़ती रही, आखिर उठाए और फिर लिखा है नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई में इस कदर अलील हुए कि 7 दिन तक अहले मदीना आपकी तीमारदारी को आते रहे। लेकिन असी पुत्र असी नहीं पुत्र, आज पुत्र बस करो, ये 1 घंटे से तकरीबन पुत्र मैं कितना कर सकता हूँ, जो जो दस्तक दे सकता था, जिधर जिधर से मैं आपको, मैं पुत्र कोशिश की थी। पुत्र आओ अपने अल्लाह की तरफ, छड़ छोड़ो बच्चे। वीर जी ये अमीर आदमी हमें मुंह नहीं लगाते, सलाम लो तो सिर एने से ना सलाम लेंदे, फिर भी जाके करांगे। हम इनके किसी फंक्शन में, दुख में, सुख में चले जाएं तो मत्थे ते वट पैंदे ने, यार ये स्टेटस ही नहीं साढ़े वाला, ये कितने आ गया। फिर भी वो नहीं चाहते कि हम उनकी खुशी में, उनकी गमी में जाएं, वो नहीं चाहते कि हम उनकी शादियों में आए, वो नहीं चाहते कि हम उनसे मिले। क्यों? क्योंकि स्टेटस अल्लाह क्या है इनके पास, कुछ भी, 4 पैसे ही है ना, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनसे। लेकिन हजरत साहब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजाऊन। ओ अल्लाह, ओ मुल्कां दा मालिक, ओ अल्लाह कह रहा बंदिया नहीं मुंह लांदे ते छड्ड व अनीबू इला रब्बिकुम, साडे अल्लाह ऐ नहीं चाहते कि असी आइए, लेकिन वो की कहता है वानीबू इला रब्बिकुम। लेकिन फिर कह रहा है फफिरू इलल्लाह, और दौड़ अपने रब वल। उथे दे मैं हुजूर कुछ कसूर मेरा भी,
اس سال ہم 78واں یوم عاشور منائیں گے. 78 میرے خیال سال ہو گئے, لیکن اسی بھی پانی تو اگے پانی دیں. میں اینڈ کرنے لگا ہوں, آپ سارے تشریف فرمائیں. چلو جو میں غلط تھا میری اصلاح ہو جائے گی. پتر شخصیت پرستی چ نہیں جانا, گل سچ سچ دسیو. میں تانوں پوچھن لگا جی, سید صاحب تشریف فرمائیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں. میری گل نہیں تو مجھے دس چھڑیو, میری اصلاح ہو جائے گی. اگر امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ فرما لیتے, ابن زیاد شمر اسی آج تینوں پانی پی کے دسنا ہے, تو ذرا روک کے دس, تے پھر کوئی روک سکتا سی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی روک سکتا. لیکن حضرت ہم نے تو جوش خطابت میں یا پتہ نہیں کس وجہ سے ایسے ایسے جملے بھی بول دیے کہ جو میرے امام کی شایان شان. میں نے کئی بار سلیمان مصباحی سے کہا ہے, اور سلیمان اکاؤنٹ سے پیسے پہلے منگا لینی, ان کا دا ڈاری, انہی سچ دس, میرے حسین کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نہر کے پانی کو ترسے, اور شدائیہ وہ مال کے کوثر ہے, کوثر. واہ, بے شک بے شک. ان کی شان انہوں دی شان نہیں کہ حضور نہراں دے پانی میں ترسے. وہ مال کے کیونکہ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے, وہ کہتے کبھی ہم نے دیکھا حسین نانا جان کی زبان چوس رہے ہیں, کبھی دیکھا نانا جان حسین کی چوس رہے ہیں. جس زبان کو اللہ کے محبوب چوسے ہیں وہ نہر کے پانی کے لیے ترس سکتی, بلکہ ہوا کیا تھا, وہ نہر کا پانی آپ کی زبان مبارک کو ترستا. وہ عرض کرتا رہا امام پاک ویسے اپنی زوم چ کھلوتے نے کہ اسی امام حسین تے پانی بند کر چڑے, آپ تے پانی کون بند کر سکتا ہے؟ آپ دے تے کپڑے بھی جنت چو آئے, آپ دے تے چولے بھی فرشتیاں نے جلائے, آپ دیاں تے چکیاں بھی فرشتیاں نے جلائیاں, آپ پہ پانی کون بند کر سکتا ہے؟ یہ تو آپ قبول ہی نہیں فرما رہے. اگر اجازت ہو تو میں نہ قدم بوسی کے لیے آ جاؤں گا. ہر بار میرے امام نے مسکرا کے یہی فرمایا ہوگا, جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو. پتر اللہ دا واسطہ باجی, پہلی گل سبحان ربی الاعلیٰ, جب مجھے پتہ لگ جائے سبق سنایا کوئی یاد ہی کہ سبحان ربی الاعلیٰ بدانا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ جدو بھی مسجد چانا ہے کی بن کے آنا ہے, تے اون اللہ اور اللہ دے رسول دی طرف کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا بڑا کھیڑ لیا ہے. انہیں نہ بزرگاں کل کس لئی آنا ہے, اللہ تے اللہ دے رسول دے پیار لئی آنا ہے. بس پتر بس کرو ہے, آؤ چکھ لو ہے مزے پتر. یہ صدا کام اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ یہ رنگ ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.